Hello everyone. So we are going to understand this question. It is basically from spring mass system. So a block of mass m shown in the figure is in equilibrium. Okay. If it is displaced further by x and released, find its acceleration just after it is released. Okay. Take pulleys to be light and smooth. Strings are also light, that ideal condition that we always consider. Okay, so this part is this question has two part. One is this, that this mass system that you see on the screen, okay, it is in equilibrium. So let's just consider that for a while. Okay, so this string is same, right? This one and this one. So let's just assume that this is how you put the direction of tension, right? Away from the point where you are trying to understand. So this is the same string, so this tension will also be T, और यही string ऊपर जा रही है, so this is also the same. Okay, so what would be the tension here? 2T. And in the beginning, let's say if it is in equilibrium, so how it would have come in equilibrium? By extending this spring, k थोड़ा सा तो खींचा होगा, राइट? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? लेट्स एज्यूम कि x नॉट खींचा होगा, ठीक है, और यहाँ पे फिर कितना आ जाएगा टेंशन? 2T. ओके, और आप जानते हो कि यहाँ पे mg, राइट? तो दिस सी, ये जो स्ट्रिंग है जिसमें स्प्रिंग इज अटैच्ड, both are same, so T will be as equal to the whatever the spring force is present in that path, or in that branch, basically T equal to kx naught. And since the system is in equilibrium, 2T is equal to mg, and 2T is what? Sorry, T is what? Kx naught. So 2 into 2 kx naught is equal to mg. Okay, so you have this one equation, don't forget it. So in the next case, what is you're asked to do? If it is whole system, if it is, sorry, if what, if mass, a block of mass m shown in figure is in equilibrium, if it is displaced further by x and released. So this part is very interesting, that's where you have to focus. So if this mass m is released by x, okay, so what I'm going to tell you, let's say once you displace this mass to this position, and how much you are displacing? X, right? So now once you displace x and you are holding it, आप इसको पीछे x खींच के आप होल्ड किए हो, ठीक है, एंड क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है जैसे ही आप मास को रिलीज करोगे किस एक्सेलरेशन से ये मूव करेगा. बाय द वे, मूव करेगा मैंने बोला है, सो किस डायरेक्शन में मूव करेगा आप हंच से ऐसे सोच के बता सकते हो. खींचे हो नीचे तो स्प्रिंग इसको रिस्टोरिंग फोर्स लगा के इट विल ट्राई टू ब्रिंग इट टू द अदर साइड. सो जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड होगा, राइट? सो even though you assume downward, आपका negative आ जाएगा, you don't have to worry about it. But if you know, you should consider the direction as well. So in this scenario, what I'm going to do is we are going to consider the tension T prime, और इसमें भी आ जाएगा T prime और इसमें भी आ जाएगा T prime. अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, और यहाँ पे वही पहले जैसा एकदम से कुछ भी नहीं डिफ़िकल्ट है. यहाँ पे भी 2T prime और 2T prime, ठीक है. See, now spring force, how much would be the spring force? That part is very important. Okay, so what I'm going to do is, so if this mass came here, so I'm going to assume that this pulley is going to come below as well, right? Or this will be attached something like this. Okay, I should have chosen some other color, but fine. So this pulley is here. Tell me one thing, to bring this mass by to this level, x नीचे लाने के लिए पुली को भी नीचे आना पड़ेगा ना. कितना आना पड़ेगा नीचे? हाउ मच पुली विल कम डाउन? x, राइट? अब देखो, पुली को x नीचे आने में कितना एक्सटेंशन, स्ट्रिंग कितना रिलीज होना पड़ेगा. नॉट लाइक दैट, थिंक अबाउट इट कि स्ट्रिंग की लेंथ कितना बढ़ेगी,
और बढ़ेगी तो कहाँ से बढ़ेगी? देखो ये स्ट्रिंग फिक्स्ड है इधर, ठीक है, इधर से तो बढ़ नहीं सकती, और इधर भी फिक्स्ड है तो ये वाली स्ट्रिंग की लेंथ भी बढ़ नहीं सकती, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ। ये भी नहीं बढ़ सकता, ये भी नहीं बढ़ सकता, बढ़ेगा कहाँ से? केवल ये स्प्रिंग कांस्टेंट की लेंथ बढ़ेगी, ठीक है। तो पुली को x नीचे लाने के लिए, मास को x नीचे लाने के लिए पुली x नीचे जाएगा, और स्ट्रिंग में कितना एक्सटेंशन होना चाहिए? 2x, x दिस साइड और x दिस साइड। तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट का जो फोर्स हो जाएगा कितना हो जाएगा? x नॉट तो इक्विलिब्रियम वाला पहले से ही है उसमें, और फिर 2x, ठीक है, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट। एक बार रिवाइंड करके फिर से समझ लेना कि पुली x नीचे जाएगा, उसके लिए स्ट्रिंग को 2x खींचना पड़ेगा। स्ट्रिंग विल बी elongated by 2, स्प्रिंग विल बी elongated by 2x, ओके। सो दैट पार्ट इज डन। नाउ नथिंग इज डिफिकल्ट हियर। अब मास पे वही न्यूटन सेकेंड लॉ, नेट फोर्स इधर कितना आएगा? 2t प्राइम माइनस mg इज इक्वल टू एम ए। और 2t प्राइम कितना है? टी प्राइम इस ब्रांच में तो स्प्रिंग फोर्स ही लग रहा है ना, तो ट्वाइस टी प्राइम कितना है? के टाइम्स एक्स नॉट प्लस 2x माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। ऑल राइट, सो ट्वाइस के एक्स नॉट प्लस 4 टाइम्स के एक्स माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। टेल मी वन थिंग, यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम में क्या कंडीशन निकाले हैं? के एक्स नॉट वॉज इक्वल टू एम जी। के एक्स नॉट किसके बराबर था? एम जी के बराबर, एंड दिस गॉट कैंसिल्ड आउट। एक्सेलरेशन जस्ट आफ्टर रिलीज कितना हो जाएगा? एम। यही आपने डायरेक्शन उल्टा माना होता तो माइनस साइन आ जाता। तो आपका व्हाट इज द आंसर? दिस वॉज वन ऑफ द ऑप्शन, एंड दिस क्वेश्चन बिकेम इंटरेस्टिंग ओनली बिकॉज ऑफ दिस थिंग, ठीक है। यहाँ आपको सोच पाना कि स्प्रिंग से ही सारा टेंशन, सारा एक्सटेंशन होगा स्ट्रिंग का, ठीक है। तो ये सोच पाना वॉज इम्पॉर्टेंट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, थैंक यू।